Hello everyone, it's Structure of a Cell part 2. In this video we will try to cover the full chapter Structure of Cell of grade 6. Very first topic is it's about the shape of the cells. Shape of cells. Okay, we are having 6-7 different shapes of the cells. We will talk about these 6-7 shapes of the cell. So that about cells I already told you that with the naked eye we are unable to see, but here I'll give you some examples that cells which we are able to see with our naked eye. Fine. Firstly, I told you that with the help of microscope we are able to see all the cells. Okay, almost all the cells, but I'll let you know today with this shape of the cell that one example that I'll let you know that the one shape of the cells which we are able to see with our naked eye. Fine. So the first thing is we are going to talk about the shapes. Number one is irregular shape. Irregular shape. इसमें क्या होता है कि शेप जो है वो इरेगुलर होगी, स्पेसिफिक शेप नहीं होगी. कोई मींस शेप नहीं होगी, लाइक सर्कल नहीं होगा, ओके, स्फेरिकल नहीं होगी, कि ओवल नहीं होगी, कोई भी शेप नहीं होगी, उसको बोलते हैं इरेगुलर शेप. बेस्ट एग्जांपल इज अमोइबा. अमीबा बोलते हैं हम सिंपली अमोइबा. सो द शेप ऑफ दिस इज this is irregular shape. Fine. So it is the shape of amoeba. Fine. And it's not regular, it's a irregular shape. It is number one. Number two, now we have it is oval shape. Oval shape in the sense shape like egg. So egg is suitable example. Egg of an ostrich, whatever you can say, consider it, because the shape of the egg is like this. It is oval shape. Fine. So I know that some have confusion that if you told before that it is unable to see with the naked eye, how we can say this is a cell, big cell. So come back to the definition of the cell. What was that? It was structural and functional unit of life. Structure we have oval, functional है, ये फंक्शन करता है, हाँ, इसमें कुछ लिक्विड है जो with the warm climate it will convert into a new baby plant. So it is functioning with the structure. Okay, so that unit of life, it is a unit and life is inside of this cell. So from the definition, what was the definition? It is clear that it is also a cell. Fine. Next is number 3. Number 3 is oblong shape. Any suitable example? If you know, write in the comments first before watching the video. Fine. Example is paramecium. The shape of paramecium is like this. It is looking like slipper. अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम जो है वो है मनी. So this is the shape of paramecium. Question is always coming like slipper shape cell. Give example which are having the shape like a slipper. So that is paramecium. You can read
the spelling from your book, that paramecium. Fine. Number 4 is elongated. Number 4 is elongated shape. This is also a shape that I told you that 6-7 shapes will come, so that I'll let you know that what will come. Okay, so this is in muscle cells. Muscle cell. Fine. So muscle cells are of this shape. Fine. This is elongated shape, and the example is muscle cells. Next one is thread-like cells. Thread-like. The shape is like thread. The shape will be like a thread. So it will be like in this form. Fine. The shape is like this. This is called thread-like structure. So the example, it will be in, as I told you, in nerve cells. The example is nerve cell. So it is thread. It is a like thread structure, but it is with the zoom. When we are going to zoom in, that it will be separated. But if normally we are saying it is like a thread going this side. Fine. Next is flag. Flag are the example for skin cell. Number 6. I'm going to erase this first. Second last. Sorry. It is number 6. Flat shape. Flat means flat. There is no need to draw. This is example is skin cell. जो skin के cells हैं, this outer layer of skin, this is flat cells. With the help of with the naked eye, we are unable to see these cells. But the example is, as I have given you, that skin cells of animals. Fine. So that will be considered in flat size of cell. तो जब हम किसी का साइज एरिया मेजर करते हैं तो हम सेंटीमीटर्स, मीटर्स, माइक्रो, मिलीमीटर्स एंड ऑल द थिंग्स वी आर यूजिंग. बट हियर जब सेल्स की बात होगी तो माइक्रोमीटर्स वी विल यूज. For that micrometers, we can say microns, simply microns. Fine. And this will be the sign. I'll write it again like this. It will be the sign which we will use to denote microns. So the average size, अगर हम बात करें, average size of a cell, ये vary करता है 3 microns to 30 microns. Fine. ये जो है एवरेज साइज है किसी भी सेल का, जो वेरी करता है फ्रॉम 3 to 30 माइक्रॉन्स और माइक्रोमीटर यू कैन से. सो द साइज ऑफ द बैक्टीरिया, सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया का साइज है वो करता है वेरी फ्रॉम 0.2 to 0.5 micrometers. The size of a bacteria vary from 2 to 5 micrometers. So that I told you that some example like egg of a hen, hen's egg, which we can say with our naked eye. The size of this is 6 centimeter. This is only we are considering in centimeter because it is big in size. Second is ostrich. Ostrich is near about 23 centimeter in size. That egg is, or cell is, simply you can say.
Fine. So this is about the size of the cell. Now आप यहाँ देख रहे होंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, मैंने सेल जो एनिमल का है और एक प्लांट का सेल है, दोनों को ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो शेप है दोनों सेल्स की वो वेरी करती है और कहीं पे ये सेम भी लग रही होगी। जो एनिमल का प्लांट है, एनिमल का सॉरी सेल है, उसमें क्या है, जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े कर्व शेप होते हैं और इस केस में वो शार्प होते हैं। ओके, एंड आई हैव रिटन द नेम्स एवरीथिंग ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट न्यूक्लियस, इन दोनों में कॉमन क्या है, वो है न्यूक्लियस, दोनों में प्रेजेंट होता है। बट प्लांट सेल में जो शेप है न्यूक्लियस की वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू एनिमल सेल और प्लांट सेल के जो दोनों के न्यूक्लियस हैं वो डिफरेंट होते हैं शेप में, बट प्रेजेंट दोनों में नहीं होते हैं। अभी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही है। सेल की जो मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर है, जो सेल को एक कंप्लीट सेल बनाती है, उस सेल लेयर को बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, जो दोनों में प्रेजेंट होती है। अगर यहाँ पे देखोगे ध्यान से, जो इनर लेयर है सेल की, उसको सेल मेम्ब्रेन बोला है यहाँ पे प्लांट सेल में, बट उसकी तो एक ही है, ये डबल कोटेड होता है। जो बाहरी लेयर होती है, आउटर लेयर, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, सेल की वॉल, एंड दैट नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन एज कंपेयर टू दिस, both having cell membrane as we can see. Then the next is cytoplasm. It is a liquid. Rest all the parts, जब हम सारे पार्ट्स एक तरफ कर देते हैं तो इसमें एक लिक्विड बचता है दोनों में, ठीक है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, सेमी लिक्विड यू कैन से, लाइक हनी। फाइन, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, जेली लाइक लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, ये दोनों में प्रेजेंट होता है। जस्ट फोकस यहाँ पे करना है, ये इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होती है। बाकी ऑल द पार्ट्स, ऑल रेस्ट, ये न्यूक्लियस को छोड़ दो, ये साइटोप्लाज्म को छोड़ दो, जो सारे पार्ट्स हैं उनको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये था बेसिक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल ऑफ एनिमल एज वेल एज सेल ऑफ अ प्लांट। ओके, ये था बेसिक, we can say difference between, and we can say the similarities between. Okay, so next about these all the parts, I'll let you know that how you can keep in your mind that when we are making a diagram sometime हम क्या करते हैं कि जो नेम्स है वो अलग अलग लिख देते हैं कि ये है सेल वॉल, इसको सेल मेम्ब्रेन बोल दोगे, अंदर वाले को सेल मेम्ब्रेन बोल दोगे, ठीक है, वॉल बोल दोगे, सॉरी। तो वो मैं ये सारे पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, अभी इसको मैं बोल रहा हूँ। सो फर्स्ट मैंने आपको डायग्राम्स ड्रॉ की, प्लांट सेल की इस साइड और एनिमल सेल की दिस साइड, मींस दोनों डायग्राम ड्रॉ की मैंने। तो ये चार मेन पार्ट्स थे, ठीक है, और ये चारों के मेन फंक्शंस आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल हमेशा प्लांट सेल में होती है, याद रखना, ये एनिमल सेल में नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सेल मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों नाम से ही लिखी होगी, आगे क्लासेस में जानी जाएगी, तो कंफ्यूज मत हो। तो फर्स्ट बेसिक फंक्शन क्या है इसका, ए नंबर, इट इज आउटर लेयर, आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल लिखोगे आप यहाँ पे, क्योंकि एनिमल सेल में ही होती है आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। क्योंकि प्लांट सेल में क्या होगा, वहां पे जो आउटर लेयर है वो सेल वॉल होगी। ठीक है, ये आउटर लेयर है किसकी, एनिमल सेल की। स्पेशली ये आप लिखा होगा, तो ये आपने याद रखना है अपने दिमाग में। इसकी जो शेप है, सॉरी, इसका जो फंक्शन है वो क्या है, शेप देना। ये जो एक सेल को शेप देती है, ठीक है, और ये क्या होती है, थिन होती है, थिन एज वेल एज सेमी परमिएबल।
लेयर होती है। सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव भी बोलते हैं ऐसे। हो सकता है आपकी बुक में सेमी लिखा हो और सिलेक्टिव लिखा हो, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होने का। ये जो सेमी और सिलेक्टिव है ये दोनों ही बोला जाता है। सेमी मींस हाफ, सिलेक्टिव मींस कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल को ही अपने थ्रू पास होने देती है। परमिएबल मींस लाइक आप बोल सकते हो लेयर, सेम एज इट इज। ओके, एक लेयर होती है सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल लेयर। ओके, जो सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही अपने थ्रू पास होने देती है। ठीक है, नेक्स्ट इज having definite shape as I told you, and it helps to protect all the organs of a cell, all the parts of the cell it helps to protect। ठीक है, ये था अबाउट सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके बारे में। नेक्स्ट इज आफ्टर दिस इट विल बी सेल वॉल। ठीक है, सेकंड इज सेल वॉल। ये क्या लिखोगे, सेम ही है जैसे फर्स्ट प्लांट सेल के लिए लिखा था, सेम ही इसके लिए भी लिखोगे सेल वॉल। इस केस में क्या है, नंबर ए पे सेम लिखोगे द आउटर लेयर इसकी ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट के सेल की जो आउटर लेयर है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये क्या होती है, उसके कंपैरिजन थिक होती है। ये भी क्या करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जो है सेल। ठीक है, ये फ्रीली परमिएबल होती है, फ्रीली परमिएबल मींस सभी सब्सटेंसेस को अपने थ्रू पास होने देती है, बट ये रिजिड होती है। रिजिड मींस हार्ड होती है, जो सेल है उसको थोड़ा हार्ड बनाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रीली परमिएबल, जो सभी सब्सटेंसेस को अपने थ्रू पास होने देती है। तो ये था सेल की वॉल और सेल की मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस और फंक्शंस ऑफ दीज ऑर्गन। आगे क्या है, ये है न्यूक्लियस। ये दोनों हो गए। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस 3। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम मास्टर ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखता है, सुपरवाइज करता है, ये सुपरवाइजर होता है, इसकी निगाह रहती है कि कौन क्या कर रहा है। ये ध्यान रखता है कि सारे जो सेल के पार्ट्स हैं वो फंक्शन प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये मास्टर होता है। तो इसकी जो शेप होती है ज्यादातर वो क्या होती है, ओवल शेप होती है। ओवल शेप रहती है मींस ऐसी शेप रहती है, ऐसी शेप रहती है, कंप्लीटली सर्कल नहीं होता न्यूक्लियस कभी भी। ठीक है, वो होता है न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस है, जो आपने देखा होगा सेल में, एक सेल में न्यूक्लियस था, सेंटर में प्रेजेंट होता, वो भी एक बोल सकते हो डबल कोटिंग होता है, डबल लेयर होती है उसकी, प्रोटेक्टेड होता है क्योंकि वो मास्टर है, इसलिए उसकी भी लेयर जो होती है वो डबल लेयर होती है। और इस लेयर को क्या बोलते हैं, इस डबल लेयर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसके भी सेंटर में कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके भी सेल में कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। और इस लिक्विड के साथ कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। जो ये सारा कुछ है, जो जिसको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, और जो यहाँ पे एक लिक्विड फील्ड रहता है, उनके भी अलग अलग फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो वो जो लिक्विड है
ठीक है, उसको हम सॉरी जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और जब इस क्रोमोसोम की बात करें, इसकी शेप ऐसी होती है, इसको जब थ्रेड को जूम किया और इसमें कुछ प्रेजेंट होता है जिनको हम जीन बोलते हैं, जो हमारी जेनेटिक फीचर हैं, जो हमें रिजेंबल करती हैं हमारी पास्ट जनरेशन से, जो हमारे फीचर्स आगे की जनरेशन में ट्रांसफर करेंगी, वो यहाँ पे होते हैं, जिसको हम जीन्स बोलते हैं, जेनेटिकल। ओके, नेक्स्ट थिंग इज जो इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के यहाँ पे, उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है, इसका नाम है। और ये यहाँ पे जो जीन है और जो क्रोमोसोम है, ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं जेनेटिकल फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। तभी हमारी जो शक्ल है, हमारे कैरेक्टर्स हैं, हमारे जो फीचर्स हैं, हमारी पास्ट जनरेशन से मैच करते हैं। बोलते हैं ये अपने पापा के जैसा दिखता है, अपनी मम्मा के जैसा दिखता है, आईज इसकी उसके जैसी है ना, तो वो होते हैं जेनेटिकल फीचर्स, ठीक है। ये था हमारा न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस को भी अगर जूम इन करें, ठीक है, तो उसके भी आगे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर के बारे में, उसके अंदर जो कुछ प्रेजेंट होता है उसके बारे में, फाइन। सो इट इज अबाउट न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म क्या था? साइटोप्लाज्म अगर याद हो तो साइटोप्लाज्म एक लिक्विड था, नंबर 4। साइटोप्लाज्म ये जो था एक सेमी लिक्विड था। सेमी मींस हाफ लिक्विड, जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका क्या काम है? ये क्या करता है? एक तो प्रोटेक्ट करता है सारे ऑर्गन्स को जो सेल के होते हैं। दूसरा क्या है? ये मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ अ सेल। एक सेल की मूवमेंट के लिए ये हेल्पफुल होता है। ये था अबाउट साइटोप्लाज्म। ये लिक्विड है, ये सेल जो है कंप्लीटली इस साइटोप्लाज्म के साथ फिल्ड होता है। आफ्टर दैट जो पार्ट्स हैं वो इसकी वजह से प्रोटेक्टेड भी रहते हैं, और ये लिक्विड है तो ये फ्लोट करता रहता है, इसी की वजह से सेल फ्लोट करता है और जो है मूवमेंट क्रिएट करता रहता है एक सेल की। फाइन। सो ये था सेकंड पार्ट अबाउट द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर एंड दैट पार्ट्स ऑफ द सेल आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. You can watch the next video, part 3. If something is pending, I'll try to explain in third part also. Otherwise, next video we will continue. Thank you.